بہت آسان ہے. یہاں پہ ایک مسل ہے, یہ فرنٹ پہ ہے کہ بیک پہ؟ فرنٹ پہ. فلیکسر ہوگا کہ ایکسٹینسر؟ فلیکسر. اور یہ جناب کون سے بون ہے یہاں پہ؟ کارپل. اگر دیکھ ہاں یہ مان کر میں نے یہاں ہے ادھر رکھا ہے, یہ فلیکسر پارٹ ہے, انٹیریئر پارٹ ہے, ایک مسل ہے. یہ کس بون کے ساتھ جائے گا؟ ریڈیس. کس بون کی طرف؟ کارپل. دیکھیں فلیکسر ہے کس کی طرف جا رہے ہیں؟ فلیکسر کارپائے. اور کس بون کے ساتھ؟ ریڈیس. فلیکسر کارپائے ریڈیس مسل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلیکسر کارپائے ریڈیس مسل. کلیئر ہے؟ اگر یہاں پہ ہے یہ فلیکسر ہے کہ ایکسٹینسر؟ تو یہ کس بون کے ساتھ جائے گا؟ اور کس کی طرف؟ فلیکسر کارپائے مسل. دیکھیں مسل بنتے جا رہے ہیں. تو وہ مسل جو فرنٹ پہ ہو, فلیکسر ہو, کارپل کی طرف جا رہا ہو ریڈیس کے ساتھ, فلیکسر کارپائے ریڈیس ہے. جو ادھر ہے وہ فلیکسر کارپائے ریڈیس ہے. کلیئر ہے؟ اوکے جی. اگر میں یہاں پہ ایک ورڈ لکھوں, دس از کارڈ کولیسس. کولیسس از دا ورڈ یوز فار تھم. یہ کس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں؟ تھم. یہ یاد رکھیں انرٹی کے ورڈ ہے. کولیسس کا مطلب ہے تھم. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ لوگ یاد رکھیں, اگر ڈیجٹ آ جائے, ڈیجٹی یا ڈیجٹ آ جائے, دیٹ از کالڈ فنگرس. ڈیجٹ کا مطلب کیا ہے؟ فنگر. ڈیجٹی یا ڈیجیٹورم یہ مطلب فنگر کو کہتے ہیں. اگر جناب اس میں آ جائے بریوس, بریوس مین شارٹ. بریوس کو کہتے ہیں شارٹ مسل کو بریوس مسل کہتے ہیں. اور اگر ایک مسل بہت لمبا ہے اس کو لانگسٹ مسل کہتے ہیں, دیٹ از لانگ, لانگسٹ مسل. اگر آ جائے مینیمی, مینیمی مین اسمال. اگر ایک ڈیجٹ کو ہم اسمال ڈیجٹ کہتے ہیں, اس کا ڈیجٹی مینیمی مطلب ڈیجٹ ہے لیکن چھوٹی ہے, اس کو مینیمی کہتے ہیں. مینیمی مطلب اسمال, اسمال ڈیجٹ از ڈیجٹی مینیمی. کلیئر ہے؟ اب لگتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اور ایک اور ورڈ, سوری ایک اور ورڈ یاد رکھیے, پروفنڈس. اگر اس میں کیا ہے؟ پروفنڈس مین ڈیپ. پروفنڈس کا مطلب کیا ہے؟ ڈیپ. کلیئر ہے؟ ادھر دیکھیں یہ ایک مسل ہے, آپ لوگ امیجن کریں اس کا تاکہ آپ لوگ کو آسان ہو جائے. دس مسل اسٹارٹ فرام دی انٹیریئر پارٹ, یہ فلیکسر پارٹ ہے, کارپل بون کی طرف جا رہا ہے, ریڈیس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. فلیکسر کارپائے ریڈیس, فلیکسر کارپائے ریڈیس. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ ایک مسل ہے ادھر پہ, یہ بھی فلیکسر مسل ہے لیکن یہ پام ہے, اس ایریا کو ہم پام آف دا ہینڈ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ پام. یہ مسل ہے اس پام کے ساتھ جا کر کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور یہ لمبا مسل ہے, اس کو پی ایل کہتے ہیں. فلیکسر سوری پالمیرس لانگس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پالمیرس لانگس مسل. لانگ مسل ہے جو پام کی طرف جا رہا ہے, پالمیرس لانگس مسل. لیکن this muscle is absent in some individual. Palmaris longest muscle present in the front of the forearm, but this muscle is not present all the time in anyone. But in some people it may be absent. Normally by birth. یہ کبھی absent ہوتا ہے, کبھی present ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یہ اس پام کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے. اگر کسی بندے میں پالمیرس لانگسٹ مسل ہو, اس بندے کی جو ریسٹ گریپ ہے نا وہ مضبوط ہوتی ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط. سو ریسٹ گریپ بیکم مور اسٹرانگ if the person have palmaris longus muscle. کلیئر ہے؟ ادھر دیکھیں نیکسٹ پوائنٹ, ایک مسل ادھر سے آ رہا ہے, فلیکسر ہے ایکسٹینسر. فلیکسر مسل ہے ادھر جا رہا ہے اور کس کی طرف؟ کم کی طرف. کم تو کولیسس ہے نا, اور لانگ مسل ہے فلیکسر کولیسس لانگس. فلیکسر کولیسس لانگس. ایک مسل ہے ادھر دیکھیں یہاں سے آ رہا ہے, فلیکسر ہے ایکسٹینسر. فلیکسر کس کی طرف؟ ڈیجٹ کی طرف. فلیکسر ڈیجیٹورم. اگر وہ یہاں پہ ایک اینڈ ہو جاتے ہیں سامنے اور ایک ادھر آ جاتا ہے, یہ سپرفیشل ہے, یہ ڈیپ. فلیکسر ڈیجیٹورم سپرفیشیلس, فلیکسر ڈیجیٹورم پروفنڈس. کلیئر ہے کہ نہیں؟ یا یہ نام آپ لوگ کو تب ہے کہ ناٹ ورڈس, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے, nobody will ask in the exam کہ بھائی آپ مجھے فلیکسر مسل بتائیں, لیکن جس نام میں فلیکسر آتا ہوں فلیکسر اپر لمب میں, it will show interior compartment of the forearm. یہ کہاں کو شو کرے گا؟ interior compartment of the forearm. مسل کے نام لکھے لیکن بلڈ میں نہیں ہے, صرف لکھے اور پھر سمجھا کہ اس کے اندر یوز کیا ہے. کلیئر ہے؟ اوکے. یہ کون سا کمپارٹمنٹ ہے شاباش؟ انٹیریئر کمپارٹمنٹ آف forearm. 95% of muscles in the forearm front innervated by median nerve. کون سی نرو ہے؟ median nerve. But only a limited part of this area is
सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। वो कौन सी है? अल्नर नर्व। ये किसका इंटीरियर पार्ट है? आर्म की फोर आर्म। आर्म की फ्रंट कौन सप्लाई करता है? मस्कुलोक्यूटेनियस। इस आर्म की बैक कौन सप्लाई करता है? रेडियल। इस फोर आर्म की फ्रंट को मीडियल प्लस अल्नर और इसकी बैक फिर भी रेडियल नर्व है। याद रखें फिर से, शोल्डर से लेके इस एल्बो तक ये आर्म है। आर्म का जो फ्रंट है ये कौन सा नर्व है? मस्कुलोक्यूटेनियस। इसका जो बैक है ये रेडियल नर्व है। इस फोर आर्म का जो फ्रंट है मीडियल प्लस अल्नर। इसका जो बैक है रेडियल, इसका जो लेटरल है रेडियल। इसका लेटरल रेडियल है। तो मुझे ये बताए, ये इसको आज नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? ये नाट में सीख लेना। देखें यहाँ बताए विच नर्व विल बी दिस मस्कुलोक्यूटेनियस। ज़हन में मोटी मोटी चीज याद रखें, मस्कुलोक्यूटेनियस। यहाँ पे जनाब क्या है? डिस्कार्ड, ये एरिया डिस्कार्ड रेडियल, ये आर है रेडियल है, ठीक है। फिर इधर आ जाए, ये है सीखने का तरीका है ना। ये पूरा एरिया जो फ्रंट है ये किसके पास है? मीडियन प्लस अल्नर। और बैक साइड क्या है? बैक साइड फिर भी रेडियल है। तो ये रेडियल नर्व जो बैक साइड है ना, ये इस तरह जाके और बैक साइड ऑफ द हेड को सेंसरी इंफॉर्मेशन भी देती है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन मतलब हेड का जो बैक साइड है इसकी जो सेंसेशन है दैट इज डन बाय रेडियल नर्व। ये कौन सा नर्व है? रेडियल नर्व। अब आ जाए जो हाथ का फ्रंट है, पाम है, इसकी तरफ कौन आ रही है? मीडियन एंड अल्नर। देखिए दिस इज कॉल्ड थंब, दिस कॉल्ड इंडेक्स फिंगर, दिस कॉल्ड मिडिल फिंगर, और ये क्या है? रिंग फिंगर। अब रिंग फिंगर को मैं दो में डिवाइड करता हूँ। इधर देखिए ये दो में डिवाइड किया है। अब अगर ये हाथ पे इस तरह ले जाए तो इसका ये वाला पार्ट बॉडी की तरफ है कि नहीं है? इसको हम कहते हैं मीडियल पार्ट और लेटरल। इसको मीडियल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मीडियल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। इसको लेटरल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर कहते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? अब इधर देखिए ये दोनों नर्व आगे आ रही है, तो यहाँ पे एक सुराख है, टनल है, कार्पल टनल। कार्पल टनल से कौन सी नर्व सुने जाएगी? मीडियन नर्व। कार्पल टनल सिंड्रोम का नाम सुना है ना? इधर से मीडियन नर्व गुजरती है। इस मसल को, ये वाले मसल दैट इज कॉल्ड टेनार मसल, इसको कहते हैं हाइपोटेनार मसल। अब इधर देखें, थंब, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, ये तीनों पूरे और इस रिंग फिंगर का कौन सा हाथ? लेटरल हाफ। देन ऑल आर इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व। ये कौन सी नर्व है? मीडियन। अब कितना बचा? ये कौन से मसल है? हाइपोटेनार, लिटिल फिंगर और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर जो लिटिल की तरफ है, दैट इज इनर्वेटेड बाय अल्नर। इसका मतलब ये है कि हाथ का जो फ्रंट है ये मीडियन नर्व और अल्नर नर्व के पास है। इसका जो बैक साइड है ये मेनली किसके पास है? रेडियल के पास है। बात समझ आ गई कि नहीं? ओके जी, बताइए कौन सा मसल है ये वाला? व्हाट इज दिस मसल? इफ अ पर्सन प्रेजेंटेड टू यू विद टेनार मसल एट्रोफी भी वो कम रह चुके हैं, तो उसको कौन सी नर्व सेंसेशन नहीं दे रही है? मीडियल नर्व लगेगा। इफ अ पर्सन हैव हाइपोटेनार मसल एट्रोफी, क्लियर है? व्हिच digits in the finger dual innervation, this ring finger, इसका हाफ मीडियन है और हाफ अल्नर है। ये वाहिद नर्व है जिसको डबल नर्व सप्लाई मिलती है, एक मीडियन नर्व से मिलती है और एक अल्नर नर्व से मिलती है। समझ आ गई कि नहीं? इसको अब इंशाल्लाह लेवल करेंगे और इसको फिर आगे पढ़ेंगे इसकी मीनिंग क्या है। ये पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या है, जल्दी रिपीट करें। फ्रंट ऑफ द आर्म विच नर्व? बैक ऑफ द आर्म? फ्रंट ऑफ द आर्म mainly median, a little bit ulnar, lateral radial, dorsal radial। इसका मतलब यहाँ से शुरू होते हुए पूरा आखिर तक dorsal क्या है? रेडियल। तो which nerve is radiating in the whole upper limb? Radial nerve is a radiating nerve। याद रखें, ठीक है ना? रेडियल नर्व क्या है कि जहाँ से रेडिएट करके आगे तक आएगी, दिस इज कॉल्ड ओके। वो कौन सी नर्व है जो पूरे हाथ में एक्सटेंड होती है? और रेडियल नर्व का काम क्या है? एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट। इससे एक्सटेंडेड इज ए रेडियल नर्व। ये भी है एक्सटेंडेड नर्व, रेडिएटिंग नर्व, पोस्टीरियर नर्व, ऑल आर गोस फॉर रेडियल नर्व। अब आसान हो गया कि नहीं? अब इधर देखिए, फ्रंट यहाँ से मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, बैक रेडियल नर्व, यहाँ पे टेनार मसल, थंब, इंडेक्स, रिंग और हाफ, मीडियन नर्व, हाइपोटेनार, हाफ ऑफ रिंग और लिटिल फिंगर इज। ये है नर्व सप्लाई।
اب اس کو ہم مسل کے ساتھ ریلیٹ کریں گے اور ان سے پوچھ بنائیں گے. ٹھیک ہے, چلے کہ مسل ذاتی کا ٹھیک ہے, اب آسان ہو جائے گا. دیکھیں مسل ذات انٹیریئر compartment of forearm. ٹھیک ہے, مسل ذات انٹیریئر compartment of the forearm کی اگر ہم بات کریں گے, ادھر دیکھیں فار ایگزامپل these are called flexor muscles. یہ سارے کیا ہے؟ یہ flexor muscles ہے. اب آتے ہیں جناب اس کے اندر جو مسلس ہے وہ لکھے نام بتائے جس کو جو بھی آتا ہے. فلیکسر یس وہ بھی ہے, فلیکسر کا تھائی النیرس, فلیکسر کارپائی ریڈیلس, بہت آسان نام ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. فلیکسر لیویڈورم پروفنڈس means it goes deeper into the digit. ٹھیک ہے, پروفنڈس yes ٹھیک ہے. فلیکسر لیویڈورم سوپرفیشیلس کولیسس لانگسٹ. اب دیکھیں یہ 5 مین مسل یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب جو فلیکسر کولیسس لانگسٹ تک یہ یاد رکھنے ہیں. these are very very important. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ان لوگوں نے کیا لکھا ہے؟ فلیکسر کارپائی النیرس, فلیکسر کارپائی ریڈیلس, فلیکسر ڈیجیٹورم سوپرفیشیلس, فلیکسر ڈیجیٹورم پروفنڈس, فلیکسر کولیسس لانگسٹ. اس کے ساتھ آپ لوگوں نے مزید 2 ایکسٹرا یاد رکھیں. brevis is the word used but it is not comes from here. شارٹ مسل اس میں نہیں ہے یہاں پہ, لیکن اگر کہیں کہ شارٹ brevis ورڈ آ جائے ایگزام میں اس کا مطلب شارٹ ہوگا, لیکن فرنٹ میں brevis نہیں ہے, اس میں صرف لانگسٹ ہے. اس میں صرف کیا ہے؟ لانگسٹ ہے. اس کے ساتھ 2 مسل ایڈ کریں. ابھی بتائیں نا وہ کون سا مسل ہے جو گریپ کو مضبوط کرتا ہے؟ پالمیرس لانگسٹ. وہ کون سا مسل ہے؟ وہ بھی ادھر ہے نا. تو آپ لوگ لکھیں پالمیرس لانگسٹ, palmaris longus, اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ پرونیٹر ٹیریز مسل. کون سا؟ پرونیٹر these are the muscles in the front of forearm. یہ forearm کے front muscle ہے. لانگس کس سائڈ پہ جاتا ہے؟ لانگس پانچویں نمبر یہ کام کی طرف جانا ہے. کس کی طرف جاتے ہیں؟ کام کی طرف. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوکے, یہ آپ لوگوں نے صرف ایگزام میں یاد رکھنا ہے, یہ رٹنے نہیں ہے, صرف سمجھانے کی کوشش کرو لوگوں کو. یہ سارے مسل فلیکسر کے نام سے زیادہ آتے ہیں. دے آر انٹیریئر کمپارٹمنٹ مسل. یہ کہاں پہ مسل ہے؟ انٹیریئر کمپارٹمنٹ. اور ان سب کا کام ہے فلیکشن آف دا ریسٹ, ریسٹ کی فلیکشن اور ڈیجٹ کی فلیکشن. یہ ہم ڈیجٹ کو فلیکس کرتے ہیں اور ریسٹ کو یہاں ان مسلس کی وجہ سے کرتے ہیں. اس میں MCQs آتا ہے. تو لیکن آل مسلس MCQs آپ لے کے ہاں یا which muscle آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, which muscles is entirely mean totally is entirely innervated by ulnar nerve. اب کوئی نہیں بتائے گا, میں آپ لوگوں کو ٹرک بتاؤں گا کیسے. دیکھیں ہاں, بات ہم نے یہ کی ہے نا کہ جس کے ساتھ فلیکسر کا وڑا ہے, فلیکسر یہ فرنٹ کا ہوگا کہ بیک کا؟ فرنٹ کا مسل ہوگا. ٹھیک ہے, اب ادھر سوچنے کی بات سارے فوکس کریں. اب یاد رکھیں کہ ان 7 مسل میں سے جو کتنے مسل ہم نے لکھے ہیں؟ 7. ان 7 مسل میں سے ایک مسل ہے ایک جس کو ٹوٹلی نرو سپلائی کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ نرو سے. اب آپ ایگزام میں بیٹھے ہیں, آپ سے بھول گیا ہے کہ بھائی وہ کون سا مسل ہے. بھائی جس مسل کے ساتھ النر ہے النیرس, تو وہ کون سی نرو جائے گی؟ النر. تو اس میں وہ کون سا مسل ہے نرو سپلائی کرے گی؟ النیرس. اس پہ بس آپ لوگوں نے ٹیک کرنا ہے, بہت آسان. النیرس جب النر کے ساتھ جائے گی تو اس کو النر نرو سپلائی کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ فلیکسر کارپائی النیرس. تو دیکھیں فلیکسر کارپائی النیرس. لیکن یہاں پہ دو چیزیں
अगर एक मसल है, अगर हम एक मसल की बात करें, फ्लेक्सर कार्पा रेडियस, क्या हो रेडियस, इसकी नर्व सप्लाई अगर चाहिए। और एक होता है जो बैक साइड में होगा, वो क्या है एक्सटेंसर कार्पा रेडियस, इसमें फर्क है। फ्लेक्सर कार्पा रेडियस इज द मसल ऑफ फोरआर्म इन द फ्रंट, ये कहाँ का मसल है, ये फ्रंट का मसल है। लेकिन जो फ्लेक्सर कार्पा रेडियस है, ये एक्सटेंसर ये कहाँ है, ये लेफ्ट साइड का है, इस तरह है ना, एक्सटेंसर ऑन द पोस्टीरियर और फ्लेक्सर ऑन द फ्रंट। जो फ्लेक्सर कार्पा रेडियस है, इसकी नर्व सप्लाई क्या है, मैंने कहा यहाँ पे कितनी नर्व होती है, दो, मीडियन प्लस अल्नर, ज्यादा कौन सा है मीडियन। आंखें बंद करके फ्लेक्सर कार्पा रेडियस में क्या है मीडियन यहाँ पे। लेकिन अगर बैक साइड पे हम गए, एक्सटेंसर की बात गई, तो फिर क्या है रेडियल यहाँ पे। तो लोग जब रट लेते हैं ना, वो कहते हैं यार फ्लेक्सर कार्पा रेडियल है तो बस ये रेडियल नर्व होगी, नहीं, इट इज वर्ड रेडियलस बट इट इज अ फ्लेक्सर मसल, बट फ्लेक्सर इज ऑन द फ्रंट व्हिच इज मीडियन नर्व। इसमें ये थोड़ा सा ट्रिक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रही है नहीं? लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि भाई रेडियलस है तो बस रेडियल नर्व होगी, नहीं, रेडियस मसल दो है, एक फ्लेक्सर है और एक एक्सटेंसर है। जो फ्लेक्सर है ना उसकी सप्लाई मीडियन नर्व है और जो एक्सटेंसर है उसकी सप्लाई रेडियल नर्व है। तो इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा केयर करना है, इसको मीडियन नर्व लिखे, मीडियन नर्व, और इसको हमने क्या लिखना है रेडियल नर्व। आई थिंक यू पीपल गॉट इट, ठीक है, गलत नहीं होना इसमें, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप, okay, medial half of the flexor digitorum profundus, flexor digitorum profundus is innervated by, एक बंद आ जाए मसूद प्लीज, भाई ये चीजें करेक्ट करनी है, पहले लेके शाबाश। मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसकी क्या मीडियल हाफ की बात हो रही है। कभी एग्जामिनर कहते हैं कि लेटरल हाफ, कभी कहते हैं मीडियल हाफ, इसमें थोड़ा सोचना है, वो मैं आपको अभी इस डायग्राम से समझा होता है कि लोग फिर इंशाल्लाह गलत ना हो जाए, ठीक है। पहले लेके शाबाश, कोई पिक्चर लेना चाहे समझ आ रही है कि नहीं? आज शाबाश करता हूँ, इधर देख, हाँ ये फोरआर्म है, फोरआर्म, ये फोरआर्म है, ठीक है। इसमें जनाब हमने एक मसल ड्रा करना है। अगर मसल यहाँ से स्टार्ट होगा, फ्लेक्सर होगा ना, अब ये मसल जनाब फ्लेक्सर है, अब जा रहा है डिजिट की तरफ, लेकिन डीप जाएगा तो क्या है सुपरफिशियल प्रोफंडस है। भाई ये इस मसल की पूरी थिकनेस है, जैसे ये पूरा एक मसल है जो डीप पर इस डिजिट को आएगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इस तरह है ना। दिस मसल इज एफडीपी, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इस मसल को मैं दो में डिवाइड कर, इसका बिल्कुल मिड में इस तरह एक लाइन ड्रा कर दो। इसको मैंने कितने में डिवाइड किया, दो में। इस मसल का इधर देखिए, ये वाला हाफ बॉडी की तरफ आया और ये वाला हाफ बाहर की तरफ गया। दिस इज कॉल्ड मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। बात समझ आ गई कि नहीं? ये कौन सा हाफ है, मीडियल हाफ, और ये कौन सा हाफ है, लेटरल हाफ। ये मीडियल हाफ किस बोन की तरफ है, अल्नर। सो मीडियल हाफ ऑफ दिस मसल इज इनर्वेटेड बाय अल्नर। ये इस तरह है। इसकी जो मीडियल हाफ है ये कौन इनर्वेट करेगी, अल्नर। लेकिन यहाँ पे किसी और को नहीं देना, जो लेटरल हाफ है ये कौन करेगी, मीडियल नर्व, क्योंकि इस कंपार्टमेंट में कितने लोग हैं, तो मीडियल एंड अल्नर। इसको अगर मीडियल हाफ अल्नर करेगी तो लेटरल हाफ मीडियल नर्व। इसका एमसीक्यूज ये है कि एक मसल बताएं इन सब में से जिसको दो नर्व सप्लाई करती है, आंसर इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है? इधर देखिए कैसे याद करोगे आप, भाई जो मीडियल हाफ है वो अल्नर इज ऑलवेज मीडियल, तो भाई जो मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, अल्नर नर्व, और इसका लेटरल हाफ मीडियल। क्लियर है? लेके इसका ले कहते हैं इसमें ले अल्नर नर्व। तो यहाँ पे आप लोग लेके
half of FDE flexor digitorum profundus or lateral half of PB flexor digitorum profundus. बताइए इसका आंसर अल्नर और इसका मीडियम. ओके, ऐसी नर्व, ऐसी मसल या ऐसा मसल जिसको दो नर्व सप्लाई है उसको डुअल इनर्वेशन कहते हैं. डुअल मीन डबल. एमसीक्यूज का भी सवाल ये भी आता है व्हिच मसल इन द फोरआर्म फ्रंट हैज अ डुअल इनर्वेशन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. ये एमसीक्यू है. ये कौन सा है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. भाई आप लोगों ने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल ये मसल है ना, इधर देखिए हमने तो इस तरह याद किया था बीबीएस में जब मैंने पढ़ा था कि भाई जो बंदा ज़्यादा डीपर जाएगा ना उसके पीछे हमने ज़्यादा लोग भेजने हैं. मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी सिस्टम में कोई बंदा सुपरफिशियल छेड़छाड़ करे उस टाइप का केयर नहीं. जो बंदा डीप चला जाए ना एक चीज़ में उसकी केयर ज़्यादा करनी चाहिए. तो उसके लोग एक होगा या दो ज़्यादा. जो प्रोफंडस है ना वो डीप है, उसके लिए इनर्वेशन भी दो चाहिए. वो रास्ता ज़्यादा तय करेगा, उसको इनर्वेशन भी डबल चाहिए. इस तरह याद करें, ठीक है. तो डीप इज अ डुअल और प्रोफंडस मीन इसमें डी आता है, डी फॉर डुअल इनर्वेशन. याद रखें, ठीक है. बस ये इंशाल्लाह फ्लेक्सर कंपार्टमेंट से आप लोगों ने क्या याद रखना है? All muscles present in the flexor compartment of the forearm help in the flexion of the wrist joint and flexion of the digits. All muscles are mainly innervated by medial nerve except 1.5 muscle. 1.5 mean कि एक पूरा और एक हाफ. They are innervated by ulnar. वो पूरा मसल कौन सा है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस. जो हाफ है वो मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. वो कौन सा मसल है जिसको डुअल इनर्वेशन है यहाँ पे? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. ये मेन पॉइंट है. क्लियर है? Which muscle sometime present sometime absent? आंसर है palmaris longus. वो palmaris longus है. कल मैंने आप लोगों को एक और एमसीक्यू बताया था क्यूबाइटल फोसा. याद है कि नहीं? कल हमने पढ़ा है क्यूबाइटल फोसा इज अ ट्रायंगुलर शेप एरिया. ये मीडियल और लेटरल के कॉन्डाइल के दरमियान लाइन है. इसका मीडियल बॉर्डर कौन बनाता है? मीडियल बॉर्डर सुपीरियर और कोरोनल टेरिस. एमसीक्यूज ये भी आता है ये जब मीडियल बॉर्डर बनाते हैं तो फिर फोरआर्म में चला जाता है. ये एमसीक्यूज एक ऐसा मसल बताए फोरआर्म के फ्रंट का जो क्यूबाइटल फोसा का मीडियल बॉर्डर बनाता है अंदर इस कोरोनल टेरिस. ये क्लियर है ना? तो ऐसा मसल या नेम ऑफ द मसल which is present in the front of forearm which make the medial border of this cubital fossa. Answer is clear है. ये आप आगे चलते हैं इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे इसकी मेन ठीक है. क्लियर है कि नहीं? ये था फ्रंट ऑफ द फोरआर्म मसल्स. खास वो है जो वो चीज़ें ग्रैब करें तो कल एक्सप्लेन करेंगे. मैं पैसे कह रहा हूँ बर्डन नहीं लेना अपने ऊपर. एंजॉय करके रिलैक्स स्टेट से बस जो चीज़ें पढ़ा तो वो ग्रैब करें. ये हर एक चीज़ की समझी है. हर जगह पे समझ में ये पता ये कार्पेटन में जाएगी. यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और एमसीक्यू याद रखें कि अगर आ जाए क्वेश्चन में जो रेस्ट है ना रेस्ट लेवल. तो जब देखिए इस रेस्ट के लेवल पर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है रेस्ट बोन. जो रेस्ट जॉइंट है ना यहाँ पे इस तरह कनेक्टिव टिश्यू का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं फ्लेक्सर रेटिकुलम. इसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सर रेटिकुलम इज अ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर विच सराउंड दिस कार्पल एरिया. और उसने टाइटली सराउंड नहीं किया है. उसने कार्पल बोन और अपने दरमियान क्या जोड़ा है? एक होल जोड़ा है. द होल अंडर फ्लेक्सर रेटिकुलम कार्पल टनल. इसको क्या कहते हैं? कार्पल टनल. भाई यहाँ पे रेस्ट के अंदर दो टनल है. बस ये क्वेश्चन याद रखें. एक को हम कहते हैं कार्पल टनल और एक को कहते हैं गायोन कैनाल. गायोन कैनाल या गायोन टनल भी कहते हैं. ये दोनों एमसीक्यूज हैं. अगर पेपर में आ जाए कि देखिए अगर हाथ के फ्रंट से हम इधर आ रहे हैं तो इधर को कितनी नर्व आएगी? दो. एक मीडियन है और एक अल्नर है. अगर एक बंदा फोरआर्म से देखिए ये रूल है अपर लिम्ब का. अगर एक बंदा आर्म से किधर जाना चाहे फोरआर्म में इसने क्यूबाइटल फोसा के एरिया से जाना है. और अगर एक बंदा फोरआर्म से कहाँ पे जाना चाहे? पाम में हैंड में उसने गयान किनारे से जाना है या कार्पल टनल से जाना है. तो बंदे भी दो है रास्ते भी दो है. अगर आ जाए कि कार्पल टनल से क्या पास होती है?
स्ट्राटम मीडियन नर्व। और अगर आज एक गयान के नर्व से क्या बात है, ये दोनों क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, ये उस साइड ठीक है, लेकिन पेपर में गयान के नाम या गयान करना क्लियर है जी। दीज आर द पॉइंट। अब यार आगे क्वेश्चन में एक पेशेंट है जनाब, एक पेशेंट है, उसकी अपर लेग के अंदर आर्म है और फोर आर्म है, इन दोनों का काम बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस बंदे की जनाब तैनात क्या है, पॉइंट समझ रहे हो? आर्म भी ठीक है, फोर आर्म भी ठीक है, लेकिन सिर्फ बंदे की जो मसल है वो हाइपोटेनर का मसला है और स्पेंकर का मसला है। तो किस नर्व की डैमेज एट द लेवल ऑफ डेश गयान टनल, क्योंकि गयान टनल इधर रेस्ट में है ना, इसका मतलब अगर ये इधर कट जाए ना तो इसका आगे वाला हिस्सा खराब होगा, इसका ऊपर वाला हिस्सा तो ठीक है। तो if a person have arm and forearm intact function but have only hypotenar atrophy, then about are not damaged at the level of gyan canal। ये भी क्वेश्चन है, ये कहाँ से डैमेज होता है, गयान canal में डैमेज होता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जनाब बैक साइड पे, एक्सटेंसर पार्ट पे, कार्पल सिंड्रोम की तरफ आते हैं। चलिए कार्पल सिंड्रोम के बारे में जो कहते हैं CTS, कार्पल सिंड्रोम। हम कहते हैं कि जनाब जो फ्लेक्सर रेटिकुलम है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका नाम क्या है, फ्लेक्सर रेटिकुलम। इसके नीचे जनाब एक टनल होता है, एक सुराख होता है जिससे मीडियन नर्व पास होती है। अगर उस सुराख के ऊपर हम प्रेशर डालें तो इसके अंदर जो नर्व है वो कंप्रेस होगी कि नहीं, कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व इनसाइड द कार्पल टनल इज कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम। मतलब ये है इसमें एमसीक्यू देगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर किस नर्व की कंप्रेशन होती है, आंसर इज मीडियन नर्व। तो भाई अगर आप लोगों को ये पता है कि कार्पल टनल से मीडियन नर्व जाती है तो कार्पल टनल सिंड्रोम में भी कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी, ये इनडायरेक्ट लॉजिक है। आप लॉजिक है यहाँ पहले के कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व in carpal tunnel syndrome। ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। आप लोग एक और बात बता दूँ, मैं अगर एक सेक्शन है ना, मेरा एक उसूल है, मैं अगर एक सेक्शन है उसकी 100% 70-80% चीज़ें एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग ग्रुप में जाकर देखें, स्टूडेंट से शेयर करें और आपको याद रखने चीज़ को आप लोगों ने छोड़ी है, वो जो चीज़ हम इधर नहीं पढ़ते ना वो मैंने फिर हैंडी पॉइंट्स में रखा होता है, तो हम एक दिन हैंडी पॉइंट्स को भी देंगे, वो उसके अंदर कवर हो जाती है, उसको वन लाइन कंसेप्ट कहते हैं, उस पर हम पूरा क्लास नहीं कर सकते। ये बात समझ गए कि नहीं? तो आप लोग इंशाल्लाह 2 महीने के बाद यू विल बी क्लीन एंड रिफ्रेश। आप लोग पता होगा कि जो चीज़ें नहीं थी वो रिकवर हो चुकी है। क्लास के 3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा वो है जो चीज़ें इंसान ने पढ़ी है वो रिवाइज हो जाती है, एक पॉइंट। जो चीज़ें इंसान से भूल चुकी होती है वो रिमेंबर हो जाती है, बाद में आ जाती है, और कुछ चीज़ें इंसान को ज़रूर नहीं मिल जाती है। कुछ चीज़ें पढ़ी होती है लेकिन याद करने के तरीके समझ आ जाते हैं, यार इसको हमने पढ़े तो उसको अभी याद कैसे करेंगे, ये तो मुझे पता भी नहीं था कि इसको इस तरह याद करते हैं, इसको कहते हैं न्यू लर्निंग। ठीक है, और टीचर वो है जो सिर्फ ना पढ़ाए लेकिन ये भी दिखाए कि किस तरह याद रखना है। पढ़ाना तो हर एक का काम है, मैं बोर्ड भरूँगा खत्म करूँगा, लेकिन आप लोग अगर समझ लेंगे तो फिर फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है ना? और आखिर में ये मेन पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट जो पास करने का है वो है कि आप लोग सिस्टम में आ जाते हैं। अगर आप लोग सिस्टम से निकल के आप लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप लोगों से पढ़ाई नहीं होती, तो याद रखिए क्लास का मतलब क्लास है, इधर कोई पढ़े ना पढ़े इफेक्ट जरूर होगा। क्लियर है ना भाई? आप लोगों ने 12 से लेकर 4 तक हर एक चीज़ जो है ना साइड पे होती है, मैंने क्लास करना है, वरना इस टाइम अगर आप लोग जाए हज़ारों काम होंगे। तो यू की रेगुलर, और जो बंदे फर्स्ट दिन से थे वो आज कुछ और होंगे। आप लोग खुद सोचिए, जो लोग आ गए हैं वो कल कुछ और होंगे, जो कल आए थे वो आज कुछ और होंगे। विद द टाइम यू विल इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट विल टेक टाइम। सही है ना? एक दिन टीचर की अच्छी पढ़ाई से मुतमईन ना हो, आगे देखे क्या क्या होता है। याद रखे टीचर इज अ टीचर विच टीच समथिंग दैट यू रियली अप्रिशिएट इन एवरी एस्पेक्ट। तो भाई मैं नाट की बहुत अच्छा पढ़ा होता म्यूनिटी छोड़ दूँ, इस तरह नहीं। पास है, पास का मतलब टीचर एवरीथिंग है। क्लियर है? तो फिर से आप लोग ये बार बार इसलिए कह रहे हैं, आप लोग बहुत से लोग कहेंगे यार ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, ये कल इसने ये अच्छा पढ़ने वाला बंदा है, कल इसने मुझे कहा सर कुछ कहते ये पढ़ो, मैं आपका मैं कहता यार जब आपने ये पढ़ लिया ना आपका सारी चीज़ें क्लियर हो गई।
لیکن یہ نہ ہو کہ ہفتے کے بعد میں کہوں یار وہ چیز کا آنسر کیا تم کو سب سوئی میں بھول کر میری روایت نہیں کیا. ریویژن از یور تھنگس. ریویژن آپ لوگوں کا کام ہے, ٹھیک ہے. ریویژن مسٹ فاسٹ. میڈین نرو کارپیٹل میں کمپریس ہو جاتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, کارپیٹل سنڈروم. اس کی کاز ریکارڈ کا کام کہ یار میڈین نرو انٹرپٹ کی کاز کیا ہے نہیں ہوتا. نمبر 1 ڈائبٹیز. ڈائبٹیز ملائٹس پیشنٹ کے اندر بھی کارپیٹل سنڈروم کے اندر میڈین نرو انٹرپٹ ہو سکتی ہے. The reason is exactly unknown. ٹھیک ہے, reason is unknown but diabetic patient present with carpal syndrome. یہ آپ لوگوں کو دینا یہ MCQ میں آپ لوگوں کو کلو ملے گا. ڈائبٹیز ملائٹس, ایڈیما. اگر ایڈیما ہو جائے, ایڈیما میں ایکسس فلوئڈ اکومولیشن, تو اگر ایکسس فلوئڈ ریسٹ کے اندر آ جائے تو وہ نیئر بائی بون کو کمپریس کر سکتا ہے کہ نہیں. فلوئڈ کین کریٹ پریشر آن دا نیئر بائی اسٹرکچر اینڈ اٹ ول لیڈ ٹو کارپل سنڈروم. لیکن یہ وہ ایڈیما ہے نا اسپیشلی جو ہائپوتھائرائڈ پیشنٹ کے اندر ہوتا ہے. ہائپوتھائرائڈ ہم پڑھیں گے اس کو میکس ایڈیما کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, میکس ایڈیما. گریوس ڈیزیز میکس ایڈیما نام سنے نا, وہ ہم آگے پڑھیں گے انڈوکرینولوجی میں انشاءاللہ. لاسٹ میں ہے پریگنینسی. پریگنینسی میں وائیو اوور لوڈ کرتا ہے کہ نہیں, پریگنینسی میں چینجز آتی ہے, فیزیولوجیکل چینجز کین لیڈ ٹو کارپیٹل سنڈروم. یہاں پہ آپ لوگ ایک لوگ لیجیے پروفیشنل ٹائپسٹ. جو پروفیشنل ٹائپسٹ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بار بار ٹائپنگ کرتے ہیں تو وہ یہ جگہ بار بار جو ہے نا وہ ٹیبل پہ رکھتے ہیں, اس میں میڈین نرو کی کمپریشن چانسز زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے پروفیشنل ٹائپسٹ. اور سم ٹائم وی ڈونٹ نو بٹ اٹ اٹس کالڈ ایڈیوپیتھی. اس کے کئی ریزنس ہیں, لیکن ایڈیوپیتھی ہو سکتی ہے, روماتوئڈ آرتھرائٹس سے ہو سکتی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کارپیٹل سنڈروم ضرور نہیں ہے کہ وہ بندہ یا ڈائبٹیز ہوگا یا ایڈیمیٹس ہوگا. اٹ میں بھی نارمل پرسن. سم ٹائمز ایگزیکٹ کازز unknown. اسی کے ساتھ سینٹنس کے عرض نہ کریں یا سر نے وجہ پہ ڈائبٹیز کو پہلے دیکھو وہ ڈائبٹیز. اس میں آپ پوائنٹس نہیں کر سکتے کیا اس کو یہ تھا تو یہ ہوا ہے, بیکاز اٹ میں بھی اینی تھنگ. یہ سم ٹائم ایڈیوپیتھک ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بعض اس کا عرض کرتے ہیں آپ کو کہتے ہیں اس بندے کو ہارٹ فیلئر ہے تب یہ ہوا ہے, اس میں وہ والی کنسپٹ نہیں ہے. کلیئر ہے, اوکے. پریزنٹیشن دیکھیں کہ پیشنٹ پریزنٹ کیسے ہوگا, جو پیپر میں آپ لوگ کو ہیلپ دے گا. پریزنٹیشن کہ واٹ از اے کارپیٹل سنڈروم پیشنٹ پریزنٹیشن. بتایا اس میں کون سی نرو کہیے, میڈین نرو. جو میڈین نرو کس مسل کو انرویٹ کرتی ہے, تینار ہائپو. تو تینار مسل بیکم انکریز ان سائز اور ڈیکریز. لیکن تینار مسل ایٹروفی نمبر 1. اس میں کیا ہوگی, تینار مسل ایٹروفی. اگر آپ لوگوں کو ایریا پتہ ہے نا کہ کون سی ایریا میں میڈین نرو جائے گی, ریسٹ آف دا پریزنٹیشن ہے ایزی. تو دیکھیے تینار مسل ایٹروفی, تینار مسل ایٹروفی. ہاں جی, اگر نرو کمپریس ہو جائے یہاں پہ ٹینگلنگ اینڈ نمبنس ہوگی کہ نہیں. ٹینگلنگ اینڈ نمبنس سینسیشن ان دی 3 اینڈ لیٹرل ہاف آف دی رنگ فنگر. اس کے اندر اس کو کہتے ہیں, کچھ بکس والے اس کو کیا کہتے ہیں, ٹینگلنگ اینڈ نمبنس سینسیشن ان دی ڈسٹریبیوشن آف میڈین نرو. یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں. پہلے 3 فنگر اور اس کا ہاف, یہ کس کی ایریا ہے, میڈین. تو اگر میں یہ کہوں کہ ٹینگلنگ اینڈ نمبنس سینسیشن ان دی 3 پلس ہاف رنگ فنگر, یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اگر میں اس طرح کہوں کہ ٹینگلنگ اینڈ نمبنس سینسیشن ان دی ڈسٹریبیوشن آف میڈین نرو, جو میڈین نرو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے جس کو ایریا کو سپلائی کرے گی اس کا ٹینگلنگ ہوگی, تو ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اگر آپ اسپیسیفک مینشن کریں پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن ایگزام میں آپ لوگوں کو تھوڑا کنفیوز کرے گا. ٹینگلنگ اینڈ نمبنس سینسیشن ان دی ڈسٹریبیوشن آف میڈین نرو ان دی پام. اس کا مطلب یہ ہے کہ پام کی ڈسٹریبیوشن میڈین نرو کی کیا ہے, 3 فنگر اینڈ 1.5 فنگر, اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے. تو ورڈس کو بھی دیکھ لیں وہ کیا بتا رہے ہیں. سم ٹائم سمپل ورڈس کین کنفیوز اس, ٹھیک ہے نا. سو کانسیپٹ کو آپ لوگوں نے ادھر ادھر نہیں رکھنا, اسٹینڈرڈ رکھنا ہے, ایکسکیوز کو ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. جب میں دیکھیں ٹینگلنگ اینڈ نمبنس سینسیشن اینڈ نمبنس ان دی ڈسٹریبیوشن آف میڈین نرو, ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, ڈسٹریبیوشن آف میڈین نرو. دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. یہ کارپیٹل ہے. اگر ایکسکیوز آ جائے تو واٹ ول یو ڈو, کیا کرنا ہے. خلاص آپ بشارت کارپیٹل سنڈروم پیشنٹ آئے ہیں نا, میڈین نرو کمپلیکس ہے. واٹ یو ول ڈو, نمبر 1 فالو اپ. ایمسیکیوز کون لے, ایمسیکیوز پر آتے فالو اپ کریں گے. نمبر 2 ویٹ فار سم ٹائم.
नंबर 3 सर्जरी, नंबर 4 मेडिकल थेरेपी। शाबाश भाई, ये मीडियन नर्व है, मीडियन, ये ऊपर से क्या हो पड़ी है, कंप्रेस। हम सबर करेंगे, कुछ टाइम देंगे, मेडिसिन देंगे या सर्जरी, सर्जरी इज द चॉइस। इसकी जो कंप्रेशन है उसको कम करेंगे, मतलब यहाँ पे जिसने बाहर से कंप्रेस किया है ना मीडियन नर्व, उसको साइड पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड डीकम्प्रेशन सर्जरी। तो क्या कहते हैं, डीकम्प्रेशन सर्जरी। जो चीज़ कंप्रेस, अब ये यहाँ पे कौन सी नर्व है, मीडियन नर्व, जिस तरह किसी ने कंप्रेस किया है तो हम सर्जरी के दौरान इसको क्या करेंगे, डीकम्प्रेस। अगर मीडियन नर्व पे प्रेशर कम करें तो फिर ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो लेके डीकम्प्रेशन सर्जरी, डीकम्प्रेशन सर्जरी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सूझ में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब एक और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हम बैक साइड की मसल को अगर देखें, बैक साइड तो फोर आर्म की कौन सी साइड है, बैक। इसमें जितने भी मसल है देयर विल बी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एक्सटेंसर, तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस, सिर्फ सुन लें, इसका कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस तो क्या होगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है ना, एक्सटेंसर पोलेसिस लॉन्गेस्ट, और इसके साथ जनाब हमारे पास एक्सटेंसर पोलेसिस ब्रेविस। अब दो चीजें याद रखिए, पोलेसिस इज द वर्ड यूज्ड फॉर थंब, थंब को आप फ्लेक्स करें बाय द हेल्प ऑफ व्हिच मसल, फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गेस्ट। लेकिन अगर थंब की हम क्या करें, एक्सटेंशन करें, इसके लिए दो मसल चाहिए, ये यूज है। Flexor of the thumb is maintained by how many muscle? One. That is flexor pollicis on each side, दोनों साइड की, हर एक साइड पे अपनी एक एक है ना। लेकिन अगर हम thumb की एक्सटेंशन करें तो इसके लिए कितने मसल चाहिए, दो। वो मसल बताए जो thumb की फ्लेक्शन करे, flexor pollicis longus, वो बताए जो thumb की क्या करे, एक्सटेंशन। एक लॉन्ग होगा, एक शॉर्ट, एक्सटेंसर pollicis longus, एक्सटेंसर pollicis brevis। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा था कि ब्रेविस का मतलब क्या है, शॉर्ट है। तो ये याद रखें आप लोग, यहाँ पे जो है एल लिखना है और यहाँ पे एल और एस लिखना है। एल मीन फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलेसिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, इसको एक्सटेंड क्लियर है। इसमें ये लिखे थंब फ्लेक्शन, ऐसे ये लिखे थंब वाले, ये अपना इंस्टीट्यूट है। फ्लेक्शन, अगर थंब में क्वेश्चन आ जाए कि फ्लेक्शन जो थंब की है वो कौन करेगा, फ्लेक्शन, दैट इज बताए फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस। देखो ये फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर का मतलब फ्लेक्शन करेगा और ये लॉन्ग मसल है। ओके, ये लॉन्ग मुझे पता है, ये अकेला काम करेगा, ये लॉन्ग मसल है, ठीक है, और ये अकेला पूरे थंब की क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा। तो फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस हेल्प इन दी फ्लेक्शन ऑफ थंब। लेकिन अगर एमसीक्यू आ जाए how many sets of muscle is required for extension, फिर दो है, पता है कब, extensor pollicis longus and extensor pollicis brevis। Okay, a person came to you cannot able, flexor pollicis longus is regulated by which nerve, median nerve, flexor pollicis longus ये median nerve है। Person cannot flex the thumb, which nerve is damaged, median, person cannot extend the thumb, रेडियल, क्योंकि आल एक्सटेंसर मसल, हम वो लॉन्गस है, ब्रेविस है, सुपरफिशियस है, जो भी आल एक्सटेंसर्स ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म आर सप्लाइड बाय रेडियल नर्व, वो रेडियल नर्व है। ये पॉइंट जरूर याद रखें, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेडियल नर्व का काम क्या है और न्यूक्लियर नर्व का काम क्या है। ओके, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आते हैं ना, पॉइंट्स रेडियल नर्व की तरफ एक और पॉइंट्स की तरफ ले जाता हूँ ताकि कुछ एग्जाम में आप लोग मजीद कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आरएमपी मिलनी है ना इस एग्जाम से, इतना आसानी से थोड़ी मिलनी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जरूर होगा ना। बोल्ड है इसको अपोजिशन कहते हैं, अपोनेंस मसल कहते हैं, opponents are the muscle innervated by medial nerve through which we can make OK sign, इसको OK sign कहते हैं। अगर हम OK sign नहीं कर सकते तो medial nerve बना लें, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ा तो हैंड बार के, ठीक है, लेकिन एग्जाम में यहाँ पे पोर्ट्रेट बना बताता है, वो आप लोग लेके
कुछ गेन कर रहे हो कि नहीं? इसको आप लोग इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, हम बार बार इसमें टेस्ट भी लेंगे, तो इंशाअल्लाह यू पीपल विल एंजॉय द एग्जाम डे। लेकिन सिंसियरली पढ़ें, सीरियसली पढ़ें, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, देखें रेडियल नर्व, देखिए रेडियल नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट नर्व। रेडियल नर्व इसकी जो मेन पॉइंट है, जल्दी देखिए इसमें 2-3 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। रेडियल नर्व इज अ नर्व अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ये तो पता है ना, ये कहाँ से अराइज होता है? पोस्टीरियर कार्ड से। इसके नीचे लेके ना पोस्टीरियर कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ये हमने पहले दिन में कोई जिक्र की थी, ब्रेकियल प्लेक्सस। ओके जी, ये रेडियल नर्व है। वैसे रेडियल नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट्स कहाँ से कहाँ तक है? एनीवन? C5 to T1, C5, C6, C7, C8 and T1. Those are root are also shared by radial nerve. अगर आ जाए कि what is the root value of radial nerve? Answer is C5, C6, C7, C8 and T1. क्या है? आप बताएं। अगर मैं C5 से C7 तक जाना चाहूँ, वो कौन सी तक होगी? बस C5, C6 और C7 इससे मिलकर एक नर्व बनती है, इधर से डायरेक्ट। एक मिनट, जिस आपको मैं इसको बता रहा हूँ, जिसकी डैमेज से वेटिंग ऑफ स्टिपुलर हो गया, सेराइटस इंटीरियर मसल को सप्लाई करता है, सिस लॉन्ग को एसेट नर्व। ये मैंने बताया नहीं था आप लोगों को, रिवीजन करें भाई, बार बार कह रहा हूँ। लॉन्ग को एसेट नर्व विद द रूट वैल्यू C5, C6 एंड C7, ये वेकिंग ऑफ स्टिपुलर से होता है। अब अगर रेडियल नर्व की रूट वैल्यू, ये सारे ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू से 5 आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जब ये पोस्टीरियर कार्ड से निकलती है तो दिस रेडियल नर्व विल एंटर टू द आर्म ऑन बैक साइड या फ्रंट साइड? बैक साइड। क्या चलेगा? एंटर टू द आर्म ऑन बैक साइड। हम मेन चीज इसमें पढ़ेंगे, टू बैक साइड। अब जब ये बैक साइड पे एंटर करेगी, अब जाते हैं कि इसके साथ में अलग स्लिप बनाने की कोशिश करूँगा। ये जनाब जो मैं अब नर्व लेके आ रहा हूँ, जहाँ में कौन सी नर्व है? इट इज कॉल्ड रेडियल नर्व। अब रेडियल नर्व पोस्टीरियर कार्ड से निकली है और यहाँ पे जैसे कि हाँ, दिस एरिया इसका आर्म, ये शोल्डर एरिया से बर्थ आर्म स्टार्ट होता है। ये आर्म की किस साइड पे जाएगी? बैक साइड पे। अब जब ये बैक साइड पे आएगी ना, इस तरह थोड़ा सा बैक साइड पे, जब ये ऐसे आएगी बैक साइड पे, इधर देखें एक बंदा है आर्म, और इधर एक बंदा, ये एरिया है ना, इधर से आई है पीछे इस तरह आर्म में, ये अपने आप से आर्म में इस तरह एक ब्रांच लेती है, इस तरह ये ब्रांच लेती है और पूरी इस तरह नीचे चली जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जब एक्सिला में होती है ना, एक्सिला की लेवल पर भी एक ब्रांच देती है जो वो नीचे की तरफ आती है, और फिर आर्म की लेवल पे एक ब्रांच देती है इस तरह नीचे की तरफ जाती है। तो जो ब्रांच रेडियल नर्व एक्सिला की लेवल पे देती है साइड, वो किधर तक आती है? आर्म तक। और जो आर्म में देती है वो फोरआर्म तक जाती है। अब लोगों को ये है क्या? These are cutaneous branches, sensory branches of radial nerve. याद रखें, अगर इस बंदे को मैं कहूँ कि मसल एक्सटेंड करे, हाथ एक्सटेंशन मूवमेंट है कि सेंसेशन है? ये मोटर है कि सेंसरी है? ये मोटर है। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे पिंच करूँ, टच, तो इसको फील होता है कि नहीं? ये क्या है? मोटर प्लस सेंसरी बोथ इफेक्ट आर कंट्रोल्ड बाय रेडियल नर्व ऑन द बैक साइड ऑफ होल हैंड। ये भी याद रखें, अब वो सेंसरी इनर्वेशन हो या मोटर इनर्वेशन हो, सब जो है ना, सब ये कौन कंट्रोल करता है? रेडियल नर्व कंट्रोल करती है। क्लियर है? एक इधर देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम रेडियल नर्व पे बात करें, इसकी जो सेंसरी एक्शन है और मोटर, इसमें जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों को याद रहना है, वो ये है कि रेडियल नर्व जब इधर आ जाती है आर्म में, तो मतलब ये है कि पहले जनाब जब ये ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलेगी पोस्टीरियर कार्ड से, मैं इधर एक चीज एंटर करूंगा, एंटर एक्सिला। सबसे पहले किसको सामना करेगी? एक्सिला, क्योंकि एक्सिला तो आर्म से पहले आएगी ना, फिर एक्सिला के साथ होते हुए किधर आएगी? आर्म में आएगी। तो वैसे एंटर टू फ्रंट साइड ऑफ आर्म या बैक साइड ऑफ आर्म। अब इधर देखिए हम एमसीक्यू जहाँ से निकलेगा, एमसीक्यू ये है
کہ یہ جناب آپ لوگ ایسا امیجن کریں کہ کیا ہے پوسٹیریئر کارڈ ہے، پوسٹیریئر کارڈ سے محبی کیا نکلی ہے، دیٹ از ریڈیل نرو، ریڈیل نرو نکلنے کے بعد اس ایکزیلا میں آتی ہے، کہاں پہ آتی ہے ایکزیلا، اور جب یہ ایکزیلا میں آتی ہے ادھر دیکھیے یہ اپنے آپ سے یہاں پہ ایکزیلا کی لیول پہ اس طرح ایک برانچ سیٹ کر دیتی ہے، یہ کیا سیٹ کر دیتی ہے برانچ، یہ موٹر برانچ ہے کہ سینسری، دیٹ از سینسری، اس کو لے کے cutaneous is the word used for sensation, cutaneous branch of posterior arm، یہ arm جو بیک سائڈ جو arm ہے نا ادھر اس کی بیک ٹچ ٹیمپریچر arm کی posterior سائڈ ہے اس کی cutaneous branch ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو ریڈیل نرو ہے نا وہ اس arm کی بیک سائڈ کو سینسری برانچ دے گی، لیکن arm کے نہیں، کہاں پہ ایکزیلا، کہاں پہ ایکزیلا میں، یہ کوشچن ہے آپ لوگوں کے کیس ہے MCQ آتا ہے کہ اب پیشنٹ اوکے چلے اب بعد میں آپ لوگ اس اناٹمی کی ڈیوٹی کرو گے یار کیوں نہیں آپ لوگ کو مزہ بھی آئے گا یار اس کے اندر ڈیپ سے کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے پوسٹیریئر کارڈ سے ریڈیل نرو سٹارٹ ہو گئی، سب سے پہلے کہاں پہنچ گئی ایکزیلا، ایکزیلا میں اس نے اپنے آپ سے ایک برانچ دی جو اس آرم کی بیک سائڈ کو سینسری سپلائی کی، پھر یہ خود کس میں انٹر ہو گئی آرم میں، اب جب یہ آرم میں آتی نا یہ اب اسٹارٹ ہو گیا ایکزیلا آرم ہے فرنٹ اور بیک سائڈ ہے پوسٹیریئر ہے، یہ بیک کا آرم ہے یہ ایک اور برانچ یہاں پہ دیتی اور وہ برانچ سینسیشن کے لیے کہاں بھجوا دیتی ہے کہاں کے لیے فورم کی فرنٹ اور بیک سائڈ، جب آپ لوگوں نے لکھنا ہے cutaneous branch of radial nerve to posterior forearm، اس طرح ہے کہ نہیں یہ posterior forearm کے لیے گیٹ کا یہ کریں آپ تو صحیح ہے سب سن لیں لیکن ریڈیل نرو جب یہ ایکزیلا میں آتی ہے نا ایکزیلا میں خود تو آگے جاتی ہے لیکن اپنے آپ سے ایک ایک کیا دیتی ہے برانچ، پہلا برانچ ایکزیلا میں جو دیتی ہے وہ کس کو بھجواتی ہے بیک آف دا آرم اور اس کو سینسیشن دیتی ہے، پھر جب یہ آرم میں خود آتی ہے نا وہاں سے برانچ ایک آگے والے فورم کو دیکھتے ہیں، پھر ہے اب ادھر دیکھیں اور یہ خود بخود کیا رہی ہے شاباش یہ موٹر ویری گڈ موٹر ریڈیل نرو آ رہی ہے، اور جب یہ بیک سائڈ آف دا آرم پہ آتی ہے بیک سائڈ آف آرم پہ انسٹیٹیوٹ ہے تو یہاں پہ آرم کے اندر تو پتہ ہے سارا کا سارا کیا پڑا ہے ہیومرس پڑا ہے، کیا پڑا ہے ہیومرس، اس ہیومرس بون کی بیک سائڈ پہ ایک گروپ ہوتی ہے جس کو اسپائرل گروپ کہتے ہیں، یاد ہے میں نے ایک انسٹیٹیوٹ شیپ کہتے ہیں گروپ میں بھی آپ نے اکثر کیا تھا ڈی آپشن اس کا، یہاں پہ یاد رکھے کہ ہیومرس جو بیک سائڈ پہ ہے آرم میں اس کے کس ایریا سے گزرے گی اسپائرل گروپ، اس سے کون سی نرو جائے گی ریڈیل، اس لیے اس گروپ کا نام ریڈیل گروپ ہے، تو کیا کہتے ہیں اس کو اسپائرل کیوں کہتے ہیں کیونکہ جب آپ اناٹمی کے اندر لیب میں ہیومرس کو پکڑتے رہا تو اس کی بیک سائڈ پہ اس طرح اسپائرل اس شیپ اس طرح ڈیپریشن ملتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں اسپائرل گروپ، لیکن اس کے اندر سے ریڈیل نرو جائے گی اس کو ریڈیل گروپ بھی کہتے ہیں، کلیئر ہے، اور آپ ادھر دیکھیں ہیومرس اگر ادھر پڑا ہے نا آرم میں اس کا ہیڈ ہے اس طرح یہ ہیڈ ہے یہ نیک ہے اور یہ کیا ہے شیپ، شیپ ان باڈی دس گروپ پریزنٹ ان دی شیپ آف دا ہیومرس، یہ باڈی کے اندر ہوتی ہے، یہ نہ ہیڈ آف دا ہیومرس میں ہے نہ نیک آف دا ہیومرس بلکہ کہاں پہ باڈی میں بالکل مڈ میں ہے ادھر، تو اب سیکیوز ہے سیکیوز اب بتائیں شاباش اگر ایک بات فریکچر ہو جائے ہیومرس کا بیک سائڈ سے بالکل مڈ میں تو کون سی نرو ڈیمیج ہوگی ریڈیل نرو، کیونکہ ہیومرس کے مڈ میں شافٹ سے اسپائرل گروپ سے کون سی نرو جاتی ہے ریڈیل نرو، تو مڈ شافٹ آف دا ہیومرس فریکچر ریڈیل نرو ول بی ڈیمیج، اس طرح ہی کہہ رہے ہیں ریڈیل نرو اب ادھر دیکھیں یہ نیچے آتی ہے جناب کہاں کو پہنچ جائے گی ویری گڈ، لیکن کہاں پہ ایلبو جوائنٹ میں، اب ایلبو جوائنٹ پہ دو کنڈائلز ہیں ایک لیٹرل اور ایک یہ لیٹرل ایپیکونڈائل کی طرف جائے گی، کہاں پہ جائے گی لیٹرل ایپیکونڈائل، ایک بندہ جائے بس مسعود آ جائے جلدی ادھر دیکھیں یہ جناب ایسا کرے دونوں ہاتھ اس طرح منہ کے جناب بنائیں ٹھیک ہے، ادھر دیکھیں ادھر کا کنڈائلز یہ کیا ہے کنڈائل ہے لیٹرل ایپیکونڈائل اور میڈیل ایپیکونڈائل، آپ لوگ خود سوچیں میڈیل کس کی طرف ہے النا کے ریڈیس باڈی کی طرف النا ہے اور اب یہ کیا ہے ریڈیس، تو ریڈیل نرو ریڈیس کی یہ لیٹرل ایپیکونڈائل کی طرف جائے گی، اور اگر ہم میڈیل کی بات کریں وہ کیا ہوگی النر، اس طرح ہے، اب یہ کیوں جو آتا ہے نا وہ یہ ہے میں جناب یہ مار کر ایک نرو ہے یہ جناب ادھر پہ میں لکھتا ہوں ادھر پہ دس از
मीडियल इपिकोंडाइल, ये कौन सा है? मीडियल, और ये क्या है? लेफ्ट इपिकोंडाइल है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इतना तो समझ आना चाहिए, जो मीडियल है उसके साथ अल्नर नर्व की रिलेशन है, जो लेफ्ट है वो रेडियल नर्व है। मीडियल इपिकोंडाइल फ्रैक्चर अल्नर नर्व विल बी डैमेज, लेफ्ट इपिकोंडाइल फ्रैक्चर रेडियल नर्व विल बी डैमेज। क्लियर है? क्लियर है? अब इधर देखिए, एक्सक्यूज दिया है ना कि जो मीडियल इपिकोंडाइल है, मीडियल ये मार्कर जो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि इधर से जा रहे हैं, ये किधर से जा रहे हैं? इधर से। अब फॉर एग्जांपल इसमें पॉइंट है, अगर मीडियल नर्व गई, मीडियल नर्व, इसका मतलब या तो ये कोंडाइल है और ये ह्यूमरस है, या तो शाफ्ट का मसला है जो रेडियल नर्व जाएगी, या लेटरल इपिकोंडाइल का मसला होगा। क्लियर है? अब मेन पॉइंट ये है, ये मीडियल इपिकोंडाइल है, ये नर्व इससे इस तरह नीचे गुजर रही है, ये फ्रंट से है कि बैक से है? बैक। और अगर ये दूसरा इपिकोंडाइल ये कौन सा है? लेटरल, ये नर्व कहाँ से जा रही है? एक्सक्यूज ये है, the relation of ulnar nerve to the medial epicondyle is posterior। ये एक्सक्यूज है कि भाई जो ulnar nerve है वो medial epicondyle की बैक से गुजर रही है, लेकिन जो रेडियल नर्व है वो लेफ्ट इपिकोंडाइल के फ्रंट से गुजर रही है, इंटीरियर से गुजर रही है। तो क्वेश्चन इस तरह आएगा, the relation of ulnar nerve to medial epicondyle is option A इंटीरियर, लेटरल, medial के posterior। क्लियर है? और जो लेटरल इपिकोंडाइल है उसका रिलेशन रेडियल नर्व के साथ इंटीरियर होता है। क्लियर है कि नहीं? बात ये है कि अगर ये कोंडाइल है, ये कोंडाइल है तब इसका एक फ्रंट है और ये क्या है? बैक है। ये मीडियल इपिकोंडाइल है, इसकी यहाँ से नहीं, इसकी बैक साइड से अल्नर नर्व जाती है। कभी कभार अगर आप लोग गलती से चेयर पे इस तरह बैठ यहाँ पे करंट लगता है नहीं, ये हम बैक साइड से अल्नर नर्व को डैमेज कर देते हैं। याद रखिए, अल्नर नर्व है इट गोज बिहाइंड द मीडियल इपिकोंडाइल, लेकिन जो रेडियल नर्व है वो लेटरल इपिकोंडाइल की फ्रंट से आती है इस तरह। और जब इधर देखें ये फ्रंट से आती है ना, तो ये किस कोसा में आ जाती है? क्यूबाइडल कोसा, और मोस्ट लेटरली रन कर देती है। ये बात समझ आ गई? और जो ये अल्नर नर्व है ये कहाँ से जाती है? बैक से, और ये बैक से इस तरह जाके अल्नर के साथ जाती है, लेकिन कोसा में नहीं जाती है। सो व्हिच नर्व इज नॉट द कंटेंट ऑफ क्यूबाइडल कोसा? आप क्लियर हो गई कि नहीं? ये पॉइंट याद रखना चाहिए। अब इधर देखें, ये इधर देखें, ये जब बैक साइड से आएगी पास इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट इपिकोंडाइल, ये तो रेडियल नर्व की बात है ना, सही है ना? रेडियल नर्व कहाँ से गुजरेगी? लेफ्ट इपिकोंडाइल की फ्रंट से। पास इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट इपिकोंडाइल, आई थिंक यहाँ तक डन। क्लियर है? लेफ्ट इपिकोंडाइल एंड एंटर टू क्यूबाइडल फोसा, यहाँ से क्यूबाइडल फोसा में एंटर करेगी, एंटर टू क्यूबाइडल फोसा। और क्यूबाइडल फोसा में मोर मीडियली होगी कि रेडियली? लेटरली। एम मीडियल नर्व है कि नहीं? एम वाज मीडियल नर्व, मोर मीडियल, और आर वाज रेडियल नर्व व्हिच आर मोर लेटरल। ठीक है, यहाँ तक शाबाश। थोड़ा 1 मिनट सोचिए, आगे चलते हैं। क्लियर है नहीं? ओके, अब इधर देखिए, अब ये नर्व जो है ना, हमने इस एरिया तक सोचा है लेटरल एपी फ्रंट से या बैक से? ठीक है जी, ओके। फिर इसके बाद जो ये नर्व है ना, एंटर करेंगे किस कोसा के अंदर? क्यूबाइडल फोसा के अंदर। ये क्यूबाइडल फोसा वाज अ ट्रायंगुलर शेप एरिया। क्यूबाइडल फोसा इस तरह हमने थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप एरिया है, इसका मीडियल पार्ट है, इसका लेटरल पार्ट है। ये नर्व इस तरह जनाब आकर इसकी मोर लेट लिया जाएगी, इस तरह है, क्योंकि यहाँ पे बाइसेप्ट टेंडन ब्रेकियल आर्टरी मीडियल नर्व है, ये वो एमबीबीआर ये रेडियल नर्व है। क्लियर है? जब ये यहाँ तक आती है तो फिर इस क्यूबाइडल फोसा के अंदर ये दो में डिवाइड हो जाती है। कितने में? दो। these are called the terminal branches of radial nerve। ये क्या है? टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ
रेडियल नर्व, याद रखिए। एक ब्रांच जो रेडियल नर्व की बनती है ना, वो याद रखें ये मोटर ब्रांच होती है। ये कौन सी ब्रांच होती है? मोटर। मोटर ब्रांच मीन जिस पर हम मसल की मूवमेंट करेंगे। मुख्तलिफ मसल की मूवमेंट किस ब्रांच से होती है? मोटर ब्रांच से। लेकिन दिस मसल एक्ट एज ऑफ सेंसरी ब्रांचेस, या इसको कहते हैं क्यूटेनियस ब्रांचेस। कौन सी ब्रांचेस? क्यूटेनियस ब्रांचेस। अब याद रखें कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मोटर ब्रांच ये हमारे लिए क्या करेगी? ऑल एक्सटेंसर मसल्स, ऑल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोरआर्म, ये हमारे पास कौन करेगी? मोटर। लेकिन जो हाथ का बैक साइड है ना, ये मैंने बताया था, ये भी किसके पास है? रेडियल नर्व के पास है, लेकिन इसकी मोटर एक्टिविटी नहीं, सेंसरी एक्टिविटी। अगर यहाँ पे हम किसी को टच करते हैं तो ये इस ब्रांच की वजह से है। यहाँ पे लिखे बैक और ये डोर्सम ऑफ द हैंड, इसको क्या कहते हैं? डोर्सम ऑफ द हैंड। अब यहाँ पे एक पॉइंट जरूर आएगा, डोर्सम ऑफ हैंड 3.5 फिंगर। अब बता दो इसका मतलब क्या है? कितना है ना? 3.5 फिंगर बता रहा हूँ। लेकिन एमसीक्यूज याद रखिए, वो ब्रांच रेडियल नर्व का जिससे हमने कौन सा काम लेना है? मोटर काम। इस पे हम रिस्ट की क्या करेंगे? एक्सटेंशन, एक्सटेंसर मसल सप्लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड डीप रेडियल नर्व। इसको क्या कहते हैं? डीप रेडियल नर्व। इसमें जाकर डीप की मसल को सप्लाई करना है। और वो ब्रांच जो बैक ऑफ द हैंड को सिर्फ सेंसेशन देगी, उसको सुपरफिशियल रेडियल नर्व कहते हैं। भाई एग्जाम्पल यहाँ से एमसीक्यू उठाकर आप लोग का पड़ेगा। क्लियर है? चले जल्दी एमसीक्यू लेके आ तो इस पॉइंट पे, लेकिन एमसीक्यू लेके रेस्ट ड्रॉप इज ड्यू टू, मैंने पूछना है ठीक है, मस्कुलो क्यूटेनियस, जिसका तो दूर दूर तक मेरे ध्यान में, अगर ये किसी ने आंसर मिलेगा उस बंदे को एमबीबीएस फिर से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? फ्रॉम द डे फर्स्ट, ठीक है ना? हम ये लेंगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट रेडियल नर्व, अगर एग्जामिनर की टेस्ट पे कि हाँ सुपरफिशियल रेडियल और डीप रेडियल। अब देखें आप लोग यहाँ पे जब टीचर नहीं समझाएगा तो लोग कंफ्यूज जरूर होते हैं। लोग क्या कहते हैं? हमने ये बताया कि अगर हम देखिए रेस्ट है, रेस्ट इसकी एक्सटेंशन है, ये क्या है और ये क्या है? फ्लेक्शन है। अगर मैं ये एक्सटेंशन कर सकता हूँ, एक्सटेंशन दैट इज ड्यू टू रेडियल नर्व। कौन सी नर्व? रेडियल। अगर ये नहीं हो पा रहा तो रेस्ट क्या हो जाएगा? ड्रॉप। तो रेस्ट ड्रॉप हमेशा लोग रेड जो होते हैं रेडियल, इस तरह है ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो रेस्ट ड्रॉप को देखते हैं और इधर रेडियल को देख के नीचे पढ़ते भी नहीं है, बस रेडियल पे टेक कर देते हैं। इट इज अ वेरी बिग मिस्टेक। आप लोगों ने अब थोड़ा सा मजीद सोचना है कि रेडियल नर्व रेस्ट ड्रॉप्स हो सकते हैं, लेकिन रेडियल की किस ब्रांच है जो एक्सटेंशन में मेन काम करती है? मोटर या सेंसरी? मोटर। सो याद रखें अगर रेस्ट ड्रॉप आंसर हो, रेस्ट ड्रॉप पूछा हो और ऑप्शन में रेडियल भी है और डीप रेडियल भी है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट विल बी डीप रेडियल नर्व। जेम्स बताता है, ठीक है? पहले तो आप लोग ना कहते हम छोटे थे ना, भी हम थोड़े से आगे जा रहे हैं ना, मैं तो हर एक अपना चेक भाई ठीक है, बस रेस्ट ड्रॉप है, लॉलीपॉप ले रहे रेडियल नर्व पे, ठीक है ना? लेकिन वो नहीं है अभी। इट इज द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व which lead to rest drop, that is called deep radial nerve. Why? The reason is it is supplying extensor muscle. अगर ये मोटर ब्रांच है, एक्सटेंशन इज अ मोटर एक्टिविटी, अगर एक्सटेंशन करेगी मोटर एक्टिविटी करेगी। और कौन सी ब्रांच पर से? डीप ब्रांच। ये स्नेल उठा कर देखे इसके ऊपर लेकिन आर्ट एमसीक्यू जो सारी ये भी है। ओके, मैं कहता हूँ if a person cannot extend the thumb, क्या नहीं कर सकता? जब बात एक्सटेंसर किया जाए, एक्सटेंसर की तो रेडियल नर्व से मिलाना है। आर एक्सटेंसर ऑफ सप्लाइड बाय रेडियल, फ्लेक्सर तो कभी अल्नर कभी मीडियल, लेकिन सारे एक्सटेंसर रेडियल। एक्सटेंशन ऑफ द थंब नहीं हो पा रही, विच ब्रांच? रेडियल की कौन सी ब्रांच? एक्सटेंशन करना ये मोटर है या सेंसरी? डीप ब्रांच वाली ब्रांच। भाई आप लोग एंजॉय करेंगे सारे एमसीक्यू इस तरह है। ए पर्सन कैन नॉट एक्सटेंड द इंडेक्स फिंगर विच नर्व? डीप रेडियल। एक्सटेंशन के नाम आए और वो ना हो सके रेडियल नर्व पे टपका, लेकिन डीप ब्रांच पे, क्योंकि वो मोटर है।
A person cannot feel sensation on the dorsum of hand, superficial radial nerve sensation. लेकिन एक बंदा है जल्दी एक चीज समझा रहा हूँ लास्ट में इधर देखिए दिस वाज द हैंड इधर देखिए सारे देखिए हाँ सारे फोकस करें दिस इज कॉल्ड देहार मसल दिस कॉल्ड हाइपोथेलामस ये एग्री है फिर हमने इसको डिवाइड किया था कितने में दो में दैट इज मीडियल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हाफ ऑफ द रिंग फिंगर इस तरह है ना अब क्वेश्चन जो है मेन ये है कि इसकी जो सप्लाई इस इंडेक्स फिंगर की इस थंब की इंडेक्स फिंगर की इस मिडल फिंगर की और इस हाफ दिस सप्लाइड बाय मीडियल नर्व इस तरह है ना हाइपोथेलर रिंग फिंगर और ये हाफ ये क्या है अल्नर है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है ये डिजिट को फ्लेक्स करने का काम करते हैं फ्लेक्स मीन मोटर है ये दोनों क्या है मोटर लेकिन अगर मैं इसकी हाथ ऐसे देखूं ये जो रिंग फिंगर मैंने कितने में डिवाइड किया दो में इधर देखिए ये जो हाफ फिंगर है किसके साथ है अल्नर फ्रॉम द फ्रंट और इसका ये हाथ भी किसके साथ है तो ये फ्रंट से इसकी मोटर एक्टिविटी कंट्रोल करता है लेकिन सेम अल्नर नर्व फ्रॉम द सेम एरिया ऑन द बैक साइड कंट्रोल सेंसरी एक्टिविटी आल्सो ये क्वेश्चन याद रखिए फिर से ये हाफ फिंगर किसके साथ है अल्नर ये हाफ किसके साथ है और ये हाइपोथेलर अल्नर ये सारा मोटर एक्टिविटी है फ्रंट से और इन एरिया से बिल्कुल साइड वाइज बैक साइड का जितना एरिया बनता है इसकी सेंसरी भी क्या है अल्नर है लेकिन इसके अलावा ये पूरा हाथ मोटर किसके साथ है लेकिन मीडियन का जो फ्रंट साइड है ना उसका बैक उतना ही सेंसरी सुपरफिशियल फ्रंट का ब्लेड है ये बात क्लियर है इसका मतलब ये है कि बैक साइड से इसकी सेंसेशन किसके पास है ये वाला रेडियल डीप और सुपरफिशियल ये किसके साथ है सुपरफिशियल कितनी हो गई 3 और एक हाफ इसमें मेरे 3.5 फिंगर क्योंकि जो 1.5 है रिमेनिंग इट इज अगेन इनर्वेट बाय अल्नर ये हाथ की ये याद रखना है ठीक है क्वेश्चन यहाँ पे है यार अगर हम हाथ रखते हैं आप लोग खुद सोचें अगर मैंने हाथ के नीचे कुछ देखना तो मैंने पहले इसको इधर से गुजरना पड़ेगा ये सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द हैंड है कि डीप इसको ब्रांच भी कौन से आएगी सुपरफिशियल ब्रांच है दिस पार्ट विल यू ها؟ شوف بالذات عند سكين كده كل صبح